Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So today is 30th of December, Monday. It's 5:11 in the morning and I'm starting my day. Here's my today's to-do list. I will be doing isomerism ka one shot, then I'll be doing motion and straight line ka revision and neural control and coordination की NCERT reading करना है plus memorization and ये है मेरा कैलेंडर जो मैंने रिसेंटली अपने शॉर्ट्स में दिखाया था। मैंने अभी से स्कूल लगा दिया है बिकॉज दिसंबर इज़ अबाउट टू एंड आज हम अपना अपना जनवरी पूरा प्लान भी करेंगे ऑन माई न्यू प्लानर on this balance baby balance planner. So yeah, let us begin. And guys, these printed notes are from a Telegram channel known as PW Printables Note. You can check out, links are in the description box. This video is titled as Are You on Zero? Like, it's a question. It's a question to all my viewers who are watching my video. So, if I answer this question, I'll say no. Like, no one is on zero. You might be studied, like, if you're in class 12, you have studied your class 11 topics, you have studied your class 12 rough and tough, maybe. And if you're a dropper, you have studied your 11th syllabus, your 12th syllabus in your school time. You have like studied so many topics, so many concepts, which you are like not counting enough because you are not confident enough कि my this chapter is ready. I will say any of your chapter is not ready, but they like most probably if you make a list or if you think yourself, you know try hard to make a list or force your brain to make a list of those topics which are stronger, which you might know in every chapter. You will surely get so many of the top which you know very well, like you have studied very well. So by making you realize this, I want you to to believe in yourself and not to keep yourself on zero, because you are not on zero. Now, talking about like what you can do now if you are somewhere at a starting or a beginning or trying to do a restart or like planning to do something to ace it, to just cover the syllabus in next 4 months and do your best in next 4 months. So it starts by changing your habits, changing your habit of inconsistency, changing your habit of getting restart every time, starting every time, changing the habit of procrastinating all the time, and at the end regretting a lot ki, oh shit, I did this, I did that. You have to change the habit of regretting every time. You guys might have tendency of regretting every time. Like I have seen people who are like they used to wake up at 6 a.m. in the morning, but it was days when they wake up at 8 or 9 or 10. They tend to regret that whole day. They focus on those 3 hours when they was not able to study. They didn't focus on the rest 18-20 hours left in the whole day. They keep on focusing that हम तो 3 घंटा सो गए, हम तो 3 घंटे सो गए. अरे यार, अभी दिन के 10-12-20 घंटे पड़े हुए हैं यार, उन पे फोकस कर लो. Why do you keep on regretting those 3 hours? I also used to ruin my whole day when my sleep cycle used to get disturbed, or I used to wake up a bit late. But like with time, I realized these things कि 3 घंटे वेस्ट हो गए तो तुम पूरा दिन नहीं वेस्ट कर सकते हो. स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई तो ऐसा नहीं है अब तुम्हारा नेक्स्ट डे खराब ही जाएगा. You have to make yourself productive. It's all about self belief sometimes. तो दिस इज़ ऑल लाइक गिविंग ज्ञान टू यू. तो ये तुम्हें खुद अप्लाई करके सीखना पड़ेगा. मेरे कहने से ये सारी चीज़ें हो नहीं जाएंगी, बट विद टाइम जब तुम ये सारी चीज़ें अप्लाई करोगे, ये सारी चीज़ें हम भी धीरे धीरे सीख रहे होते हैं विद आर मेंटर्स, विद पीपल अराउंड अस, जो हमें ये छोटे छोटे लेसन दे जाते हैं. एंड वी कीप ऑन अप्लाइंग दिस ऑन आर डेली लाइफ and we help us, like I growed a lot and I'm trying to you guys also grow with these kind of छोटे मोटे lessons. And now talking about academically, ये सारी चीज़ें तो हो गई जो तुम्हें enhance करेंगे with life. अभी right now at the moment so many of you were dealing with a lot of things. Like majority लोग हैं भी यहाँ पे हैं जो backlogs के साथ डील कर रहे हैं, अपने schedules के साथ डील कर रहे हैं. बहुत सारे कमेंट्स मुझे भी आते रहते हैं डेली बेसिस पे, क्या है एम एट ज़ीरो, हाउ टू रीस्टार्ट, हाउ टू फॉलो थिंग्स. मेरा प्रेजेंट बैच में भी बैकलॉग हो गया है एंड एवरीथिंग. तो ऊपर से डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं. पीडब्ल्यू के रोज़ एक नए बैच लॉन्च हो रहे होते हैं, लाइक नॉट रोज़ बट मोस्ट ऑफेंट प्रेजेंट बैच लॉन्च होते हैं कुछ दिन में. अभी नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स आया है एंड बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आती रहेंगी नाउ एंड देन. तो हमें उन पर फोकस नहीं करना है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट,
इन सारी चीज़ों को देखना बंद कर दो कि ये अड्डा 24/7 ने बैच लॉन्च किया तो इन्होंने लॉन्च किया, लाइक दैट। आज रक्षिता मैम का बैच लॉन्च आया तो कल किसी और का बैच लॉन्च आ जाएगा। पीडब्ल्यू में हर महीने एक ना एक बैच लॉन्च हो रहे होते हैं, तो फर्स्टली तुम्हें अपने आप को स्टिक करना पड़ेगा एक बैच पे। जैसे ही प्रचंड बैच लॉन्च हुआ, पीपल वर क्वाइट अट्रैक्टेड विद प्रचंड बैच हर जगह हो रहा था। जैसे प्रचंड बैच कुछ टाइम के बाद पीपल क्रिएट द बैकलॉग। सबसे पहले टेंडेंसी टू क्रिएट द बैकलॉग, इसे तुम्हें कट आउट करना पड़ेगा। खुद से इतना कंसिस्टेंट हो जाओ, खुद में इतना सेल्फ बिलीव पे हो कि अब बैकलॉग नहीं होने देना है। एंड जब ये चीज़ तुम्हें होगी तब जाके तुम एक चीज़ पे स्टिक हो पाओगे। जब बैकलॉग नहीं क्रिएट होंगे देन यू कैन एबल टू स्टिक ऑन योर प्लान। इन द प्लानिंग, प्लॉटिंग एंड एग्जीक्यूशन माई मेंटोर्स हेल्प मी अलॉट। सो आई हैड जॉइन द पीसीबी पॉइंट की ईयर लॉन्ग मेंटोरशिप। एंड ये जो तुम स्टडी विद मी सेशन देख रहे हो, ये भी हमारा पीसीबी पॉइंट का स्टडी विद मी सेशन है। इट्स एन ऑनलाइन लाइब्रेरी वेयर all the PCB Point old juniors study together. So many of you have so many doubts regarding PCB Point mentorship, so I quickly want to address it here. Number one, PCB Point is an year-long mentorship program. उनका एक short term mentorship भी start होता है, but वो last 2 months के लिए रहता है. So it's my genuine feedback, not like for the sake of promoting it. जेनविनली सेइंग इट बिकॉज आई एम एन एनरोल्ड जूनियर एंड तुम मुझे डेली बेसिस पे मेरे ग्रुप पे मेरी टू डू शेयर करते हो, देखते हो, मुझे स्टडी विद मी सेशन पे देखते हो, प्लस हमारे बायो की एनसीईआरटी रीडिंग सेशंस भी होते हैं जिसमें हमारी मेंटोर मैम में खुद बैठ के एनसीईआरटी की एक एक लाइन डिकोड करा रही होती हैं। लाइक इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर एनसीईआरटी सेशंस जहाँ पे एनसीईआरटी रिव्यू टाइप्स होता है, पर यहाँ पे मैम लाइक बीइंग अ नीट एस्पिरेंट मैम ने खुद जैसे एनसीईआरटी पढ़ी थी, किन किन छोटी छोटी लाइंस पे ध्यान देना चाहिए। एंड इट्स लाइक लिटरली माइंड ब्लोइंग। जब भी हम एनसीईआरटी सेशंस पे जाते हैं एक अलग ही चीज़ें पता चलती हैं जो हमने शायद जनरली एनसीईआरटी रीड करते हैं नहीं ध्यान दी होती हैं। सो इट लाइक वेरी बेनिफिशियल। जब तुम घर में अकेले प्रिपेयर कर रहे होते हो यू डोंट गेट दैट आइडिया ऑफ कंपटीशन अराउंड यू, बट यहाँ पीसीबी पॉइंट पे हम सारे पीसीबी पॉइंट जूनियर्स साथ में पढ़ रहे होते हैं, सेशंस अटेंड कर रहे होते हैं, मॉक टेस्ट हर संडे को दे रहे होते हैं वर्चुअल पीसीबी पॉइंट एग्जामिनेशन हॉल में, जहाँ पे हमारे मेंटोर हमारे एग्जामिनर बने होते हैं, वो हमारा पेपर ले रहे होते हैं, बीच बीच में हमें डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। बहुत ही लाइक एक वर्चुअल एग्जामिनेशन हॉल वाला इन्वायरमेंट हमें दे रहे होते हैं, और प्लस सारे जूनियर्स हमारे सामने बैठ के पेपर दे रहे होते हैं, तो तुम्हें प्रॉपर ऑफलाइन वाला फील दिलाया जाता है। सो इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई हैड मेंशन्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स यू माइट बी फेसिंग. इफ यू आर फेसिंग ऑल दोज प्रॉब्लम्स, हियर इज द सॉल्यूशन. So if you genuinely want to end all these problems, if you genuinely want to crack NEET 2024, you must join the PCB Point mentorship. I had shared you my personal experience, what all the features I am getting as a PCB Point junior, not just saying you as a part of like SSI you will get. I am like doing all these things. I am practicing all these things on daily basis, from planning to execution to testing. All of these are going to be planned for you from your mentor one on one. So hello beautiful humans, now telling you guys about my January planner. By the way, you have seen me covering my isomerism. So I have done with isomerism, studied around 4 hours, around 5 hours, and now I am showing you guys my January planner. I had planned my complete January, like my mentor has helped me plan my complete January. Here is my planner, and by the way, here is my January calendar. दिस इज़ माई जनवरी प्लानर. लाइक लास्ट 2 फेब के डेज भी मैंने यहाँ पे लिख लिए थे, जिसमें से आइसोमेरिज्म आज हो गया है, कल मोशन प्लेन हो जाएगा एंड एवरीथिंग. सो दिस प्लान इज़ अकॉर्डिंग टू द पीसीबी पॉइंट ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़. तो प्लस अभी पीसीबी पॉइंट में ऑल द एनरोल जूनियर्स आर गेटिंग एन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़. अगर तुम भी अभी पीसी पॉइंट मेंटरशिप ज्वाइन करोगे तो तुम्हें भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ मिलेगी. आई विल शो यू गाइज द प्लानर ऑफ इट. So this is the PCB Point Mentorship exclusive test series. This is only for all the enrolled juniors. तो जिन्होंने भी PCB Point Mentorship का एलाइट प्लान ले रखा है उसमें ये टेस्ट सीरीज़ उन्हें घर में डिलीवर कराई जाएगी, जस्ट लाइक मी. मुझे भी डिलीवर हो गया. आई शो यू गाइज. तो लेट मी शो यू गाइज द प्लानर. ये है हमारा लाइक प्रॉपर यहाँ पे सब दिया हुआ है. हैज़ द डेट्स, हैज़ द गैप्स. फिर हमारे PCB Point Mentorship का वर्चुअल एग्जामिनेशन हॉल होता है जिसके बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया. गूगल मीट पे हम सबको बुलाया जाता है, हम सब अपना कैमरा ऑन करके बैठे होते हैं. हमारे जो मेंटोर होते हैं वो हमारे वर्चुअल एग्जामिनर बने होते हैं और प्रॉपर ऑफलाइन फील के साथ हम पेपर दे रहे होते हैं. सो दिस इज़ द प्लानर. हमारा फर्स्ट टेस्ट 11 जनवरी को है. एंड उसके सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स में UND मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, प्लेन, NLM वर्क इन एच पावर सर्कुलर मोशन आ रहा है. ऐसे कर करके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में सिलेबस डिवाइडेड है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट 8 मार्च तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस टेस्ट सीरीज़ में.
तो अभी भी तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हारा सिलेबस बहुत रफ एंड टफ हुआ है, तो अगर तुम पीसीबी पॉइंट मेंटोरशिप ज्वाइन करते हो तो तुम्हें मेंटोरशिप के साथ एक टेस्ट सीरीज़ भी मिलती है। एंड नॉट जस्ट द प्लानर, इस प्लानर को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे सारे टेस्ट देना है, ये सब तुम्हारे मेंटोर तुम्हें प्लान करके दे रहे होंगे। जैसा कि तुम अभी मेरा ये प्लान देख रहे हो, तो अभी जैसे आई वॉज वॉचिंग प्रचंड सीरीज़ की लेक्चर विद दिस टेस्ट सीरीज, तो मेरा प्लान कुछ ऐसे ही है कि मैं अपने लेक्चर्स भी देखती रहूँगी एंड मीन वाइल जैसे जैसे टेस्ट होते जाएंगे मेरा टेस्ट के लिए भी सिलेबस 100% रहेगा। सो इफ़ यू रियली वांटेड टू get things done, if you really wanted to be consistent, if you really wanted to complete your syllabus, you must join the PCB point mentorship. And yeah, now talking about my January planner, in case you don't want to buy anything, you are just struggling a lot and you will be consistent with yourself. Now what you can do right now is that अगर तुमने प्रचंड बैच स्टार्ट किया था, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, या फॉलो कर रहे थे और फिर से बैकलॉग क्रिएट कर लिया, what you can do right now is that अभी 1 जनवरी से प्रचंड बैच में मैग्नेटिज्म एंड मैटर स्टार्ट हो रहा है क्लास 12th में। क्लास 11th में मोशन एंड प्लेन तक हो चुका है, NLM स्टार्ट होगा। सो बिफोर दैट तो तुम अगर 1 जनवरी से चाहो तो प्रचंड बैच फॉलो कर सकते हो। आई गेस ये वीडियो 1 जनवरी को ही जा रहा होगा, तो तुम्हें उससे पहले पहले अपना मोशन एंड प्लेन तक सिलेबस कंप्लीट करना है क्लास 11th में। क्लास 12th में 1 जनवरी तक मैग्नेटिज्म एंड मैटर तक खत्म करना रहेगा। सो इट्स लाइक मोशन एंड लाइक बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर तुमको आता ही होगा, तो तुम मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, मोशन एंड प्लेन, ये 2 चैप्टर कवर करके क्लास 11th की फिजिक्स से कंटिन्यू कर सकते हो। सेम फॉर 12th के लिए तुम्हें यहाँ पे लाइक कुछ फ्री डेज मिलेंगे, जब सिर्फ बायो पढ़ रहे होंगे प्रचंड बैच में, तो तुम अपने वहाँ पे फिजिक्स का चैप्टर डाल सकते हो। तो जैसे कि तुम्हें इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट्स, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर लाइक 4 चैप्टर्स कवर करने होंगे टू स्टार्ट विद क्लास 12th। तो EMI का 6 को क्लास 12th का एक चैप्टर स्टार्ट होगा, तो तुम उससे पहले इन चैप्टर्स को कवर कर लोगे 6 जनवरी से पहले ये 4 चैप्टर्स, तो यू कैन कंटिन्यू विद योर क्लास 12th। सेम एज फॉर लॉज ऑफ मोशन के लिए, इससे पहले पढ़ने के लिए तुम्हें स्ट्रेट लाइन और प्लेन कवर करना है, तो यू हैव लाइक 2 मोर चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स फिजिक्स के कर लिए, तो यू कैन फॉलो द प्रचंड बैच फ्रॉम लाइक सैटरडे, सो यू हैव द होल वीक, यू कैन कवर इट। नेक्स्टली इन केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म तक हो गया है, तो इसके बाद GOC स्टार्ट होगा। GOC क्यों नहीं दिख रहा है मेरे प्लानर में, आई डोंट नो, आई हैव टू फिगर आउट दिस, वेयर इज GOC। सो हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो रहा है 9 से, तो इससे पहले GOC स्टार्ट हो चुका होगा। सो यू हैव टू कवर लाइक IPC, आइसोमेरिज्म, GOC इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विद केमिस्ट्री। I don't know who's ringing the bell, guys. Let's ignore. And now we'll continue with, if I talk about biology, you can start the biology from zero. मैंने यहाँ पे सारे चैप्टर इंक्लूड कर लिया, लाइक मैंने लिविंग वर्ड से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे पीसी पॉइंट की टेस्ट सीरीज भी फॉलो करनी थी, एंड उसमें लिविंग वर्ड वाली फर्स्ट वाली यूनिट से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रॉम लिविंग वर्ड टिल एनिमल किंगडम, देन मॉर्फोलॉजी एंड एवरीथिंग। सो ऑल द यूनिट्स आर कवर्ड इन द जनवरी। इफ़ यू विल सी माई प्लानर, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया था सिर्फ बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर और बायोटेक वाली यूनिट रह रही है, तो आई डू दैट इन February, और इफ़ आई गेट सम डेज आई डू दैट। यहाँ पे मैंने कुछ संडेज फ्री रखे थे और फिर कुछ कुछ में चैप्टर्स भी डाल दिए हैं। सो या मैंने यहाँ पे लिख दिया था चैप्टर्स। एंड फिजिकल की बात करें, हमने ऑर्गेनिक की बात करी। फिजिकल में मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडाइनमिक्स हो चुका है, सॉल्यूशन हो चुका है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक में हो चुका है। सो यू हैव टू जस्ट कवर दीज चैप्टर्स आफ्टर, या जनवरी के बाद तो मैंने कवर कर सकते हो, या फिर लाइक अभी प्रेजेंट का सिलेबस फॉलो करो, उसके बाद जनवरी के बाद फेब में तुम फिजिकल की चैप्टर्स कर लेना। इनऑर्गेनिक के लिए पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग इज काइंड ऑफ अ बेस, तो तुम इन्हें कवर करके आगे बढ़ो तो बेटर रहेगा। केमिकल बॉन्डिंग इज़ इंपॉर्टेंट। सो इन बिटवीन डेज अगर हम बात करें केमिस्ट्री, मैंने यहाँ पे रेड पेन से ग्रीन से लिखा है मैंने केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में यहाँ पे ऑर्गेनिक चल रहा है। DNF ब्लॉक 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो 11 तारीख से पहले पहले अगर तुम केमिकल बॉन्डिंग कर लोगे तो तुम यहाँ से DNF पकड़ सकते हो। तो ये थोड़ी मोड़ी प्लानिंग है जो तुम्हें खुद से करनी पड़ेंगी। और अगर तुम कोई मेंटरशिप में एनरोल हो जाते हो, कोई मेंटरशिप इन द सेंस PC पॉइंट मेंटरशिप, तो तुम्हारे लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। So that's all my advice to you, my experiences to you. It's up to you. You want to follow, you can. If you don't want to follow, your choice. That's it for the vlog. अब हम मिलेंगे आपको हैप्पी न्यू ईयर के vlog में, I mean 1 जनवरी के vlog में, and then we will be executing all this. I'll try to make my January as much productive as I can, and most probably everything will be done and dusted till last of January. My syllabus will be done and dusted, my revision will be done and dusted, and yeah, that's it for this vlog. I'll meet you guys in the next one. Goodbye, and if you stayed till the end, thanks for watching.